Hi guys, welcome to my channel after almost a month, more than a month. So guys, so many of y'all were asking me that why aren't you uploading any videos? It's been a month. Is everything fine? Why are you not active on YouTube and etc etc. So yeah, I am here to answer all your questions in this video. So without any further ado, let's just start with the video. So firstly guys, bear with my voice and bear with some disturbance that is coming from my window because my window is open and I have kept it open because I am feeling very much suffocated when everything is closed, because my bedroom door is also closed, and if even if I'll close the window, then I'll get completely suffocated. So yeah, coming to the story, that why I wasn't active on YouTube for a long time, why I wasn't uploading any videos. So it's because, like, I'll start from the beginning, I'll tell you all everything. So it started from like last few days of Ramadan, that is I guess 10th or 12th of May. It all started from 10th or 12th of May. So firstly what happened, that my dad started getting sore throat, like उनके गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी, खराश जैसा हो रहा था. So usually what happens is, this is a genetic thing for him, that he has a habit of cleaning his throat every now and then, every minute. तो ये एक उनका जेनेटिक इशू है. बट दैट डे ही स्टार्टेड coughing a lot. He had a sore throat and then he started coughing a lot. So we thought it's because of climatic changes, so maybe उसके वजह से हुआ होगा. तो he started coughing, so my mother gave him काढ़ा and then she gave him cough syrup जो हम usually लेते हैं, and उससे नॉर्मल जो खांसी रहती है वो क्योर हो जाती है. बट देन माई डैड टुक दैट सिरप एंड देन बाद में वो लेकर सो गए. एंड देन बाद में थिंग्स वर लाइक गोइंग गुड, बट देन बाद में नेक्स्ट डे से मुझे एंड मॉम को भी थोड़ा थोड़ा गले में इचीनेस स्टार्ट होने लगा. सो वी वर लाइक वॉट इज़ रॉन्ग, लाइक क्यों ऐसे हो रहा है. बट देन हम लोगों को लगा दैट रमज़ान में वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ कोल्ड आइटम्स, लाइक जैसे हम फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे फ्रूट्स खा रहे हैं, एंड देन हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं रमज़ान में, बिकॉज लिक्विड कंजम्पशन करना चाहिए. एंड इट वाज वेरी हॉट, समर का टाइम था एंड बहुत गर्मी हो रही थी. सो वी वर कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड मिल्क शेक एंड स्टफ, ठंडी ठंडी चीज़ें. सो हमें लगा दैट बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग अ सोर थ्रोट एंड इचीनेस. तो हमने भी वो जो सिरप हम लेते हैं वो ली, हमने काढ़ा लिया, then we gargled and steam liya, and then we were like things will get better. But then what happened, one night my dad started coughing a lot. And then बाद में we were like क्यों इतना उनको कफ हो रहा है, मतलब यूजुअली होता है बट इतना सीवियर नहीं होता है. एंड रात भी हो गई थी, तो माई मॉम वाज लाइक अभी आप कफ सिरप लो एंड देन सो जाओ एंड देन वील सी व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट. So then बाद में my dad took the cough syrup, he took steam, he gargled and he slept. And then बाद में the next morning, early morning, my dad woke up and my dad was like, can you just check me? He told my mom that can you just check me if I have fever, because I'm feeling very cold and I'm not feeling good. So can you just check me? My mom checked him. His body was hot. He had fever. So we all got scared because first thing that comes in everyone's mind जब भी उन्हें fever and cough होता है, that is corona. तो we all were scared that corona तो नहीं हो गया है. तो then after that we told him to go and see a doctor. So he went to the doctor and the doctor told him to get the rapid antigen test done. She gave him the medicines and then told him to get the test done. So we were like, we all will get our test done. So we got all our tests and x-rays and everything, blood tests and everything done, and the test results were out. I and mom were negative, thankfully, but my dad, and we also got our grandmother tested. My grandmother tested because she doesn't stay with us, she stays 5 to 10 minutes away from my place, but she's old, so we thought she's staying alone, so it's better if we get her
टेस्ट डन एज वेल जस्ट टू स्टे ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज आगे जाके गॉड फॉरबिड कुछ ज़्यादा हुआ तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? सो वी गॉट हर टेस्ट एज वेल डन. So I and my mom were negative, but my dad and my grandmother came positive. The reports of my dad and grandmother were positive. So we were like, we actually panicked a lot. I won't say that you should panic, but it's like a human tendency. We all get panicked. So we all got very scared that अब क्या करें, what should we do next? So we contacted my aunt and then we asked her that, we told her the complete situation that ये सारी चीज़ें हो गई है, डैड एंड नानी पॉजिटिव है एंड आई एंड मॉम आर नेगेटिव. बिकॉज जैसे ही डैड को सिम्टम्स दिखने लगे थे, माई मॉम आइसोलेटेड मी इन अ रूम. आई वॉज लॉक्ड इन माई रूम एंड मॉम बाहर ही थे, बट थैंकफुली मॉम वॉज ऑल्सो नेगेटिव. थोड़ा सा उन्हें बॉडी में इन्फेक्शन था, बट डैट वॉज लाइक जस्ट नॉर्मल. वो कोरोना का इन्फेक्शन नहीं था, बट डैट वॉज जस्ट नॉर्मल, जो वायरल इन्फेक्शन होता है. मेरी मॉम को वो था. आई स्पोक टू माई आंट, आई टोल्ड हर द होल स्टोरी. सो शी वॉज लाइक, उनके रिलेटिव में ही, उनके एक है रिलेटिव, उनको भी हुआ था कोरोना एंड उनका तो रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा थी, स्कोर भी बहुत ज़्यादा था. थैंकफुल मेरे पापा और नानी का इतना स्कोर नहीं था. बट सो शी वॉज लाइक, शी गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल. सो उधर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ एंड देन शी केम बैक नॉर्मल फाइन. एंड आई वुड सजेस्ट दैट आप लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर दो पापा को और नानी को. सो वी वर लाइक, या दैट विल बी फाइन, बिकॉज एनी वे हमारे घर पे सिर्फ एक ही बेडरूम है. हाउ विल वी मैनेज डैड का सब कुछ? लाइक पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वी आर 3 of us एंड देन मैनेज करने नहीं होता. So then we were like, okay, it's better that we admit them in the hospital, because वहाँ पे उनका केयर भी होगा एंड उन्हें खाना भी मिलेगा टाइम टू टाइम, दवा भी मिलेगी एंड सब अच्छे से होगा, जो कि यहाँ पे रह के नहीं पॉसिबल हो सकता. सो वी बुक द कार एंड देन आफ्टर दैट हमने उन्हें और नानी को हॉस्पिटल भेजा एंड देन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया वहाँ पे. एंड देन बाद में लाइक मुझे एंड मॉम को भी थोड़ा इन्फेक्शन था. मॉम के तो बॉडी में, जैसे मैंने बताया, उनको हल्का सा वायरल इन्फेक्शन था एंड मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट मेरा नेगेटिव ही था रिपोर्ट. सो मुझे वो तो करने की ज़रूरत नहीं थी दवाई. सो हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड देन डॉक्टर गेव अस सम एंटीबायोटिक्स. वी टुक दैट एंटीबायोटिक्स एंड वी वर होम क्वारंटीन्ड. हम घर से निकले ही नहीं एंड हमारा होम क्वारंटीन में ही थे हम 14 डेज़ के लिए. सो वी गॉट होम क्वारंटीन. हमने एंटीबायोटिक्स का कोर्स किया. वी ड्रैंक काढ़ा, वी टुक स्टीम, वी गागल, सॉल्ट वाटर गागलिंग किया हमने एंड वी टुक अ विटामिन, जिंक, एवरीथिंग वी टुक. एंड देन डेली हम वहाँ पे अपडेट्स लेते थे डैड की और नानी की, बिकॉज वो लोगों को फ़ोन कैरी करना अलाउ था. सो हम उनकी अपडेट्स लेते थे एंड वहाँ पे सारे ट्रीटमेंट्स अच्छे से होते थे. डेली ब्लड चेकअप्स उनके होते थे एंड सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी. एंड एवरी 4 to 5 डेज़ में उनका RT-PCR होता था. सो वहाँ पे उनका केयर बहुत अच्छे से हो रहा था, खाना टाइम टू टाइम मिल रहा था. सो देन व्हाट हैपेंड, मेरी नानी तो 5 डेज़ में ही टचवुड उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, नेगेटिव आ गई. सो शी गॉट डिस्चार्ज इन 5 days, बट माई डैड डिडंट गेट डिस्चार्ज इन 5 days एंड उनको बोला कि इन्हें और रखना पड़ेगा. सो माई नानी केम होम एंड वो तो एक हैप्पीनेस थी कि नानी ठीक होकर आ गए, बट एक जगह पे स्ट्रेस और थोड़ा सैडनेस भी था कि डैड भी काश नानी के साथ आ जाते थे. बट वी at this time the only thing we can do is trust God. So हमने हमारा ट्रस्ट नहीं खोया गॉड के ऊपर से एंड वी वर वेटिंग एंड थैंकफुली आज के दिन मेरे डैड की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है and he is coming back home, and by the time you guys watch this video he will be at home with us. So it's been 14 days since my dad is admitted in hospital and आज 14 days के बाद वो आएंगे and I'm so happy that बुरा टाइम पास हो गया, because as it is said that अच्छे दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं but it takes a lot of time for a bad day to pass.
तो बैड डेज जल्दी नहीं पास होते हैं. सो वी वर फेसिंग अ लॉट सिंस द पास्ट 1 month. हमारी भी कंडीशन अच्छी नहीं थी, हमें बहुत वीकनेस हो रही थी बिकॉज वी स्टेड विद द पेशेंट इन द सेम हाउस. बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस आई एंड मॉम वर नेगेटिव एंड हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी. हमारा ब्लड टेस्ट, एक्सरे सारा ही नॉर्मल आया था. तो या गाइज, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ यू गाइज दैट कोरोना को प्लीज़ लाइटली मत लो. मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बाहर कि ना लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, या तो पहन रहे हैं तो नोज़ के नीचे रख रहे हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. वेयर योर मास्क प्रॉपरली एंड वेयर डबल मास्क, डबल द मास्क, डबल द सेफ्टी. एंड आप बहुत बहुत प्रिकॉशन लो. डेली काढ़ा पियो, स्टीम लो, सॉल्ट वाटर गार्गलिंग करो, ईट योर विटामिन्स, ईट योर जिंक एंड सारे अच्छा खाना अच्छा रखो. एंड कुछ भी ऐसी नेगेटिव वीडियोस मत देखो बिकॉज दैट विल पुट नेगेटिविटी इन योर माइंड एंड देन बहुत आपको नेगेटिव फील होगा. सो प्लीज़ डोंट वॉच एनी नेगेटिव वीडियो. स्टे अवे फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स प्लीज़. बहुत बहुत हेल्प करता है. हमने तो लाइक टीवी ऑन ही नहीं किया था जब से डैड गए हैं. हम लोग टीवी ऑन ही नहीं कर रहे थे. वी वर जस्ट वॉचिंग सम, थोड़ा बहुत कॉमेडी चीज़ें देखो जिससे आपको हंसी आए, जिससे आपका माइंड अच्छा रहे, रिलैक्स रहे. डू वॉट एवर यू लाइक. If you like makeup, do that. If you like cooking, baking, do that. If you like dancing, do that. If you like making reels, do that. मैं वही कर रही थी. सो मैंने अपना टाइम वैसे ही पास किया. अगर आपको देखनी है, मैंने रील्स, बहुत सारी रील्स बनाई है इतने टाइम में जस्ट टू डाइवर्ट माई माइंड फ्रॉम दिस इश्यूज़. तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जाके देख लो एंड फॉलो भी कर लो. वहाँ पर मेरी आईडी समवेयर यहाँ पे होगी. सो या प्लीज़ डोंट टेक दिस लाइटली. एंड बुरा वक्त आता है, सबकी लाइफ में आता है. एंड अभी भी कितने लोग हैं जो बहुत सीरियस है एंड जिनकी कंडीशन बहुत नाजुक है. थैंकफुली मेरे मॉम, नानी का और पापा का और मेरा चारों का हमारा ऑक्सीजन वाज नॉर्मल. इट वाज 98-99. इट वाज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 98-99 एंड थैंकफुली ऑक्सीजन में कुछ इशू नहीं आया था. वो एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज आई एम सीइंग कि कितने लोग हैं जो ऑक्सीजन की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. एंड दैट इज़ लाइक सो बैड. मुझे इतना बुरा लगता है देख के. आई रियली प्रे दैट ये जो भी पैंडमिक है सब ख़त्म हो जाए एंड जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं सब नेगेटिव हो जाए, सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए. एंड जो भी अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं, जो भी इश्यूज़ फेस कर रहा है, आई होप सब चीज़ें ठीक हो जाए. एंड ये जो भी चल रहा है वर्ल्ड में नेगेटिविटी, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए. एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड अच्छे खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ. मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज बहुत बहुत बुरा टाइम था हमारा. मेरे इसी चीज़ की वजह से मेरे रमज़ान के लास्ट के 3-4 रोज़े भी मेरे स्किप हो गए बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको पता चल गया होगा रीज़न कि मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रही थी. एंड अभी भी मैं थोड़ा गैप लूँगी बिकॉज आई नीड पीस ऑफ माइंड. बिकॉज हमारा माइंड बहुत वीक हो गया है. ऐसे सिचुएशन में सबके माइंड बहुत वीक हो जाते हैं बिकॉज बहुत स्ट्रेस था हमें पास्ट 1 month से. एंड हमारी ईद भी पूरी ख़राब हो गई एंड हमने ईद भी सेलिब्रेट नहीं की, अभी कुछ भी नहीं किया है. सो या गाइज, आई टेक अ ब्रेक थोड़े दिन का एंड देन आई प्रॉमिस यू ऑल मैं वापस आऊँगी अच्छे वीडियोस के साथ. एंड अगर आपको कोई वीडियो सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो. आई डेफिनेटली कंसिडर योर कमेंट्स एंड उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँगी. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.